Good morning, students. Today's topic is DNA replication. Before we do DNA replication, first we have to do a topic which is the main genetic material in organism, that is DNA versus RNA. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਿਫਿਥਸ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਿਥ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਡੀਐਨਏ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਡੀਐਨਏ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਅਵੇਰੀ, ਮੈਕਲੀਓਇਡ, ਮੈਕਾਰਟੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੈਟ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਜ਼ DNA, ਠੀਕ ਹੈ। Furthermore, Hershey and Chase experiment also proves that DNA act as genetic material, but कई organisms ਦੇ ਵਿੱਚ for example viruses RNA act करता as a genetic material। ਤਾਂ main genetic material living organisms ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ। ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਜਨਰੇਟ ਇਟਸ ਰੈਪਲੀਕਾ। ਨੈਕਸਟ, that genetic material must be structurally and chemically stable. Next है there must be occurrence of slow changes। slow changes ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, mutation, ठीक है। तो mutational जो changes ने that are required for evolution, ठीक है। evolution ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ better characters ਆਉਣ ਲਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ mutations ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। बट म्यूटेशन सडन नहीं होने चाहिए, स्लोली अक्कर करनियाँ चाहिए ने, ठीक है। फास्ट नहीं होने चाहिए। सो स्टेबिलिटी ऑफ जेनेटिक मटीरियल इज ऑलरेडी प्रूव्ड ड्यूरिंग ग्रिफिथ्स एक्सपैरीमेंट। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਜੋ ਐਸ ਟਾਈਪ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਦੈਟ ਹੀਟ ਕਿਲਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ DNA ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੀਟ ਕਿਲਡ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦਾ ਜੋ DNA ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਰ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ that heat killing did not destroy genetic material DNA. So it proves that the DNA is structurally more stable, ठीक है, structurally stable है, and it is also chemically less reactive। अगे आप points देखांगे। next है RNA unstable ਹੁੰਦਾ than DNA that mutate at faster rate। ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਿਊਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਾਇਰਸਿਸ ਹੈਵਿੰਗ RNA ਜੀਨੋਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਸ਼ਾਰਟਰ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੇਅਰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਅਦਰ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, which prove that DNA is more stable than RNA। फर्स्ट डिफरेंस है अपन पता DNA डीऑक्सीराइबोस शुगर का बनया होया, that is at second carbon, ठीक है। this OH group is not present, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं present होंदी डीऑक्सीराइबोस या DNA च। RNA च OH group present होंदा। this OH group makes it more reactive, ठीक है, तो reactions possible ने। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ DNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਪਿਰੀਮੀਡੀਨ ਥਾਇਮਿਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਇਨ ਪਲੇਸ ਆਫ ਦੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ, RNA 'ਚ ਯੂਰਾਸਿਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। RNA 'ਚ ਯੂਰਾਸਿਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂਰਾਸਿਲ ਤੋਂ ਹੀ ਥਾਇਮਿਨ ਬਣਦਾ। ਯੂਰਾਸਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਿਥਾਈਲ ਗਰੁੱਪ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੇਕ ਥਾਇਮਿਨ। ਥਾਇਮਿਨ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਸਟੇਬਲ ਦੈਨ ਯੂਰਾਸਿਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਮੋਸਟ DNA ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡਬਲ ਸਟ੍ਰੈਂਡਡ ਸਟਰਕਚਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। RNA ਮੋਸਟਲੀ ਸਿੰਗਲ ਸਟ੍ਰੈਂਡਡ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੂਵਸ that DNA is structurally more stable, ठीक है, and chemically less reactive. DNA is less reactive due to presence of thymine and deoxyribose sugar. Next, in most of the organisms hereditary material main DNA ही ਹੁੰਦਾ, RNA is present as a hereditary material in some viruses. Generally ਤਾਂ RNA ਸਾਰੇ present ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚ common ribosomes, ठीक है, +1 दौरान पढ़े ने राइबोसोम के स्ट्रक्चर के RNA होंगे। RNA मेजर रोल प्ले करता इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, बट मेन हैरीडिटरी मटीरियल की होंगे DNA। सो आपां बेटा प्रूव करता कि DNA स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल एंड कैमिकली लैस रिएक्टिव एंड DNA इज़ द मेन जेनेटिक मटीरियल। हुण DNA रैप्लीकेशन ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰੂਵਸ ਦੈਟ ਜੋ DNA ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਮੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਟ ਇਜ਼ ਸੈਮੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਮੀਨਸ ਕਿ DNA ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ DNA ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਫ ਜੋ DNA ਉਹ ਪੈਰੈਂਟਲ DNA, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਪੈਰੈਂਟਲ DNA ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਇਜ਼ ਪੈਰੈਂਟਲ DNA ਤੇ ਜੋ ਨਿਊ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਆ, ठीक है, वो न्यू होंगे मेन हाफ आ जोड़ा वो पेरेंटल DNA। इट मीनस कि हाफ सैमी जो सैमी हाफ DNA है दैट इज़ कंजर्व्ड, सैमी कंजरवेटिव, एंड दैट वाज प्रूव्ड बाय मीजलसन एंड स्टाहल, ठीक है। दो साइंटिस्ट ने 1958 च उन्होंने प्रूव किया। उन्होंने की किया, उन्होंने ई कोलाई की कल्चरिंग की इन मीडियम, उस मीडियम ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੋਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਹੈਵੀ ਆਈਸੋਟੋਪ ਲਿਆ, ਜਨਰਲੀ N14, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ N15 ਹੈਵੀ ਆਈਸੋਟੋਪ ਲਿਆ। ਉਸ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਈ ਕੋਲਾਈ ਆ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਫॉर ਮੈਨੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਜੋ DNA ਦੇ ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ N15, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਆ N15 ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਨੇ ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਵੀ ਆਈਸੋਟੋਪ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਜ਼ਲਸਨ ਐਂਡ ਸਟਾਹਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ 'ਚ N15 ਆ ਗਿਆ ਦੋਨੋਂ ਸਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੈਵੀ DNA ਨੂੰ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨਾਰਮਲ DNA ਨਾਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਾਏ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਡੈਂਸਿਟੀ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੈਵੀ ਆਈਸੋਟੋਪ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, हैवी आइसोटोप वेट ਉਹਦਾ ज़्यादा, ठीक है, तो डेंसिटी ग्रेडियंट च ਉਹਦੀ लेयर लोअर लैवल ते बनूगी, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन की जाती है सीजियम क्लोराइड के सोल्यूशन, ठीक है। हुण की आ, हुण उन्होंने पेरेंटल मॉलीक्यूल, दिस ओरिजिनल पेरेंटल मॉलीक्यूल उन्होंने लिया, ठीक है। इस पेरेंटल मॉलीक्यूल दे विच कि ये दोनों जो स्ट्रैंड्स ने वो N15 वाले ने फस्ट, उस तो बाद नैक्सट जनरेशन में जो स्टडी किया उन्होंने तो उन्होंने कोले सारे हाईब्रिड DNA आई, ठीक है, हाईब्रिड DNA जिन्हां च एक स्ट्रैंड पेरेंटल N15 वाला, जो नवा स्ट्रैंड बनया वो N14 वाला, क्योंकि हुण उन्होंने कल्चर चेंज करता। मेन N15 वाले कल्चर च ग्रो करन दा मोटिव यही सी कि दोनों स्ट्रैंड्स से N15 आ जाए, ठीक है। हुण नॉर्मल स्टडी चल रही है N15 वाले सारे बैक्टीरिया, उन्हां च अगे रैप्लीकेशन होई जदों तां उन्हां कोले हाईब्रिड DNA आए, ठीक है, हाईब्रिड DNA आए तो उस तो बाद ये सी फस्ट जनरेशन। दैन नैक्सट जनरेशन उन्होंने फिर स्टडी किया, सेंट्रीफ्यूगेशन की, तो उन्होंने कोले 2 लेयर्स आईयां हाईब्रिड DNA प्लस लाइट DNA। इट मीनस, ठीक है, कि उन्होंने कोले फरदर
2 हाइब्रिड डीएनए, ठीक है, हाइब्रिड डीएनए बैक्टीरिया है तो प्लस बाकी हाँ जी N14 डीएनए वाले। तो इट मीनस हर बार की है, ठीक है, पेरेंटल डीएनए कंजर्व रहता, हाफ ऑफ पेरेंटल डीएनए रिमेन कंजर्व्ड, ठीक है। नवा स्ट्रैंड है जो N14 वाला बन रहा है, तो हाइब्रिड डीएनए तो क्लीयर है। सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡੀਐਨਏ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸੈਮੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਡੀਐਨਏ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਡੀਐਨਏ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਡੀਐਨਏ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸੈਮੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਹੈ ਡੀਐਨਏ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਡੀਐਨਏ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਜੋ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੀਐਨਏ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਨ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਡੀਐਨਏ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬੇਟਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੀਐਨਏ ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਮੀਨਸ ਪੋਲੀਮਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਕੈਟਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ठीक है। पॉलीमराइजेशन की किन्ना ने आपस च आके जुड़ना, चेन बनानी है, वो कौन ने, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। जो न्यूक्लियोटाइड्स ने उन्होंने चेन की फॉर्मेशन करनी है, तो यदि एफिशिएंसी इन्नी है कि पर सैकेंड 2000 बेस पेयर्स पॉलीमराइज करते हैं। देखो कितना फास्ट आ डीएनए पॉलीमरेज इंजाइम, ठीक है। नैक्सट है जो डीएनए रेप्लीकेशन लिए चाहिए वो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट्स, ठीक है। आप मोनोफॉस्फेट्स किए सी पहला, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ट्राईफॉस्फेट्स चाहिए ने, ठीक है। ट्राईफॉस्फेट्स की करनगे, दे एक्ट एज सबस्ट्रेट्स, उन्होंने आपस दे विच जॉइन करना। ऑल्सो दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन, ठीक है। जदों आप स्ट्रक्चर दे विच देखे, जो आप 3 कंपोनेंट्स देखे सी, ठीक है, कि आप मोनोफॉस्फेट्स यूज़ करते हैं, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, वो सब चेन्स बनाते हैं, ठीक है। बट पहला एक्टिव होंगे ने सैल दे विच, उस की है ट्राईफॉस्फेट्स की फॉर्मेशन होंदी है, पर जदों उन्होंने चेन बनानी है तो 2 फॉस्फेट ग्रुप्स अलग हो जाएंगे तो एनर्जी रिलीज़ करेंगे, दैट एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर पॉलीमराइजेशन, ठीक है। नैक्सट है जो डीएनए रैप्लीकेशन आ दैट अकर्स विदिन स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए। तुहानू पता डीएनए दी लेंथ कितनी ज़्यादा होंदी है, ठीक है, तो एट ए टाइम सारा डीएनए तो ओपन अप हो के रैप्लीकेट नहीं करन लग्या, ठीक है, तो कुछ पार्ट्स दे विच रैप्लीकेशन होंदी है, तो उसनू बोलते हैं जो स्मॉल ओपनिंग बनती है डीएनए दे विच, ठीक है, जो स्मॉल ओपनिंग बनती है उसनू बोलते हैं रैप्लीकेशन फोक, ठीक है। नैक्सट इंपॉर्टेंट थिंग ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 5-3 ਐਂਡ ਸਮਝ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਡੀਐਨਏ ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਇਨ 5 to 3 ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਮੀਨਸ ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੋ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਫਾਰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਤੇ ਡੀਐਨਏ ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 5 ਤੋਂ ਕਰੂਗਾ, ਨਵੇਂ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। नवे स्ट्रैंड की स्टार्टिंग उन्हें 5 एंड तो शुरू करनी है 2-3 एंड, ठीक है। हाँ जी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डीएनए रेप्लीकेशन। डीएनए रेप्लीकेशन तुहानू पता अकर्स इन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेस सिंथेसिस फेज आ, ठीक है, ऑलरेडी +1 किया आपां। नैक्सट 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए दे चाहिए आपां नू। एनर्जी सोर्स एटीपी ऑलरेडी आप डिस्कस किया होने। नैक्सट है आरएनए प्राइमर्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। आरएनए प्राइमर तो स्टार्टिंग होंदी है, एक प्राइमर एक छोटा जा पार्ट, ठीक है, विच विल अटैच टू डीएनए जो रेप्लीकेट करना पोर्शन, ठीक है। उस स्ट्रैंड इत्थे नवा डीएनए मान लो फॉर्म होना, तो स्टार्टिंग आरएनए प्राइमर ज्वाइन करूगा, उसकी हेल्प कौन करो, प्राइमेज इंजाइम, ठीक है, आरएनए प्राइमेज इंजाइम वो सिंथेसाइज करूँ आरएनए प्राइमर
फर्दर फिर डीएनए पॉलीमरेज है जो एंजाइम, ठीक है, पूरे स्ट्रैंड ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆਰਐਨਏ ਪ੍ਰਾਈਮਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਜ਼ਾਈਮਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੋਪੋ ਆਈਸੋਮਰੇਜ਼ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਆ ਨਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਡੀਐਨਏ ਗਾਇਰੇਜ਼ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਨਦਰ ਨੇਮ। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग एंड रीसीलिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। जितों डीएनए रेप्लीकेशन शुरू होनी उतों स्ट्रैंड ने, ठीक है, ओपन अप होना, उत्थे ब्रेकिंग ਜਾਂ ਰੀਸੀਲਿੰग ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਟੋਪੋ ਆਈਸੋਮਰੇਜ਼ ਇੰਜ਼ਾਈਮ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੈਲੀਕੇਜ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡੀਐਨਏ ਸਪਾਇਰਲੀ ਕੁਆਇਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੈਲੀਕੇਜ਼ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਨੇ ਇਸ ਸਪਾਇਰਲ ਨੂੰ ਓਪਨ ਅਪ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨਵਾइंडिंग ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡੀਐਨਏ ਪੋਲੀਮਰੇਜ਼ 1 2 3 ਦਿਸ ਕੈਟਾਲਾਈਜ਼ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਰਐਨਏ ਪ੍ਰਾਈਮੇਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਹੈ ਡੀਐਨਏ ਦੀਆਂ ਫਰੈਗਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਡੀਐਨਏ ਲਾਈਗੇਜ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੋ ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਂ, ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਉਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੰਜ਼ਾਈਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ ਜੋ ਡੀਐਨਏ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਨੇ ਉਹ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ, adenosine monophosphate, DTMP, DGMP, all 4 types of nucleotides are present. They are activated first. Activate ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? by ATP, ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰਾਈਫਾਸਫੇਟਸ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਫਾਰਮ ਆ ਟ੍ਰਾਈਫਾਸਫੇਟ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, these will act as substrate plus provide energy, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड प्रोसीजर अनवाइंडिंग will start, ठीक है। अनवाइंडिंग आप हेलीकेज एंजाइम उन्हें करके हटे हैं, ठीक है। अनवाइंडिंग विल अकर एट स्पैसीफिक पॉइंट, तो उस स्पैसीफिक पॉइंट को नाम दिता ओरिजिन ऑफ रैप्लीकेशन, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रैप्लीकेशन की है जिथे डीएनए रैप्लीकेशन स्टार्ट होनी है, अनवाइंडिंग उत्थे होगी, और शॉर्ट फॉर्म च उन्होंने ORI कहते हैं। प्रोकैरियोट्स दे विच सिंगल ओरिजिन ऑफ रैप्लीकेशन प्रेजेंट हुंदा, जबकि यूकैरियोट्स मच लार्जर डीएनए, सो मैनी ORIs आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, ठीक है। प्रोकैरियोट्स दे विच सिंगल ही ओरिजिन हुंदा ते पूरे दा पूरा डीएनए जिहड़ा रैप्लीकेट कर जांदा, बट यूकैरियोट्स दे विच बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रैप्लीकेशन हुंदे ने। नैक्सट ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡੀਐਨਏ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, दैट विल फॉर्म अ वाई शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड रेप्लीकेशन फोक। नैक्सट डायग्राम च ज़्यादा क्लीयर होगा ਤੁਹਾਨੂੰ। सो दिस इज द रेप्लीकेशन फोक, ठीक है। डीएनए स्ट्रैंड ओपन अप होया ते अपने कोले रेप्लीकेशन फोक आया। नैक्सट जो प्रोसीजर है आरएनए प्राइमर की फॉर्मेशन होगी। सो सेम वही 5' to 3' डायरेक्शन दे विच विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आरएनए प्राइमेज, ठीक है। नेक्स्ट इनिशिएशन एंड इलोंगेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, दिस इज कैटालाइज्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज 3 एंड मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, ठीक है। डीएनए स्ट्रैंड की इलोंगेशन शुरू हो गई, बढ़ना शुरू हो गया। वो किमें होगा तुहानूं पता, कॉम्पलीमेंटरी स्ट्रैंड्स हुंदे ने। मान लो ये रैप्लीकेशन फोक बनिया, ठीक है, तो स्ट्रैंड इत्थों रैप्लीकेशन शुरू हुई है, ठीक है, रैप्लीकेशन शुरू हुई है। तो ऑपोजिट जिमें इत्थे साइटोसिन बेस प्रेजेंट आ, तो ये ऑपोजिट गुआनोसिन जो ट्राईफॉस्फेट आ पहला पहुँचूगा, ठीक है, ट्राईफॉस्फेट, बट वो अटैच होगा टू नैक्सट न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ट्राईफॉस्फेट ने 2 फॉस्फेट आ जिहड़े अलग हो जाएंगे टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर अटैचमेंट, ठीक है। तो गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट की फॉर्म दे विच इदां न्यूक्लियोटाइड्स की जो चेन बनूगी, बट दैट न्यूक्लियोटाइड्स आर ऑलवेज कॉम्पलीमेंटरी टू पेरेंटल स्ट्रैंड। दिस इज पेरेंटल स्ट्रैंड, तो नवा स्ट्रैंड जो बनना, ठीक है, दैट स्ट्रैंड हैज बेसिस कॉम्पलीमेंटरी टू पेरेंटल स्ट्रैंड। नैक्सट जिथे तक रैप्लीकेशन होनी है, एंड किमें होगा उहदा,
ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆਫ DNA ਨਿਊਕਲੀਓਟਾਈਡਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ there occurs termination of replication। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਮੇਨ ਜੋ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਟਰਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਅਨਵਾइंडिंग ਆ that is occurred by with the help of हेलिकेज एंजाइम। ठीक है, हेलिकेज एंजाइम अनवाइंड्स द DNA। नेक्स्ट वी हैव DNA गायरेज एंजाइम। ठीक है, DNA गायरेज एंजाइम अपर रीजन च देखो, DNA गायरेज रिलैक्सिस द सुपर कॉइलिंग। तुहानूं पता जो आप किस रस्सी नूं वट चढ़िया होवे उहनूं खोलदे आ तां दुबारा उहदे च जो ठीक है उहदी की नेचर है कि दुबारा फिर रस्सी वट खा जाती है। ठीक है, तो उस चीज़ को स्टेबल करने लई ठीक है जो आप कोई भी थ्रैड या इदा स्पायरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर में ओपन अप करते हैं दोबारा फिर उन्हें कॉइलिंग करनी होंदी है, तो उस चीज़ को स्टेबलाइज करने लई इत्थे एंजाइम प्रेजेंट है DNA गायरेज। ठीक है, हेलिकेज एंजाइम ने अनवाइंड किया, गायरेज ने रिलैक्स किया। नैक्सट जो हुण स्ट्रैंड ओपन अप होया इस स्ट्रैंड नूं स्टैबलाइज करने लई इत्थे SSBPs प्रोटीन्स प्रेजेंट ने, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स कहंदे ने उन्हां नूं। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। नैक्सट प्राइमेज एंजाइम आ। नैक्सट प्राइमेज एंजाइम विल हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ RNA प्राइमर। ठीक है, RNA प्राइमर ने फॉर्म RNA प्राइमर ने हेल्प करनी है। ठीक है, उस तो बाद DNA पॉलीमरेज 3 है विद हेल्प इन ठीक है इलोंगेशन ऑफ द न्यू स्ट्रैंड। हुण नैक्सट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो DNA स्ट्रैंड ओपन अप होया बेटा वाई शेप फोक बन गया। पहला तो अपने को वाई शेप फोक आ, उस दो तरह के स्ट्रैंड होंगे, एक लीडिंग तो एक लैगिंग स्ट्रैंड। हुण की आ जिमें जिमें फोक ओपन अप हो रहा ठीक है, जिमें जिमें फोक ओपन अप हो रहा देखो एक तो एंड है 3' पेरेंटल स्ट्रैंड की गल कर रही हाँ, पेरेंटल स्ट्रैंड है 3' तो वो ओपोजिट 5' ते प्राइमर लग्या होया। आपां हुणे कह के हटे कि जो DNA पॉलीमरेज आ दैट विल ऑलवेज एक्ट फ्रॉम 5' टू 3' डायरैक्शन। तो 5' ते स्ट्रैंड ते RNA प्राइमर तो नवा DNA फॉर्म होने लग गया, पर रेप्लीकेशन फोक ने इधरों नहीं खुलना ओपन अप होना। इत्थे तक जे स्ट्रैंड बन गया तो फरदर फिर रेप्लीकेशन फोक खुलूगा तो इत्थों ओपन अप होगा। ठीक है, फरदर उतों ही उन्हें खुल जाना। ठीक है, और खुल गया, बट ये वाला जो 5' टू 3' स्ट्रैंड आ कॉन्टीन्यूसली इधर नूं बनी जाऊगा, कॉन्टीन्यूसली उन्हें वधी जाना क्योंकि 5' तो शुरू होया होया। पर ओपोजिट स्ट्रैंड ते जो ओपोजिट स्ट्रैंड आ 3' तो ओपोजिट जिहदा लास्ट एंड है 5' तो इहदे 3' एंड किधर आ इस साइड। ठीक है, तो आपां नूं पता 3' दे ओपोजिट नवें स्ट्रैंड का 5' हो कॉम्पलीमेंटरी दे बेस ते। ठीक है, इत्थे 5' एंड होगा तो इस 5' ते RNA प्राइमर बनना, पर जिमें जिमें स्ट्रैंड ने ओपन अप हो जाना दोबारा फिर तो उन्हें मान लो शुरुआत इन्ना स्ट्रैंड ओपन अप होया सी, इत्थे नवे स्ट्रैंड का 5' एंड आ, पुराने स्ट्रैंड का 3' एंड आ, तो इत्थे नवा स्ट्रैंड फॉर्म हो गया। नैक्सट जो स्ट्रैंड दी फिर ओपन अप होया ठीक है, तो स्पेस फिर खाली रह गई, इत्थे फिर नवे सिरे तो 5' एंड ते फिर प्राइमर लगूगा तो उन्हें रेप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। तो इसका मतलब इस स्ट्रैंड के उत्ते जो ये स्ट्रैंड आ जिन्हों नाम दिता जाता लैगिंग स्ट्रैंड, तो इस ते बार बार RNA प्राइमरस लगणगे क्योंकि RNA प्राइमर की की खासियत आ कि वह हमेशा नवे स्ट्रैंड ते न्यू स्ट्रैंड ते बेटा समझना
ठीक है, नहीं तुसी कन्फ्यूज हो जाओगे। जो न्यू स्ट्रैंड बनता उहदे हमेशा 5 डैश एंड ते ही लगता वो, ठीक है। तो बार बार स्ट्रैंड ओपन अप होगा क्योंकि जिथों ओपन अप होना उत्थे तो हमेशा 3 डैश एंड ही होगा, क्योंकि एंडिंग इत्थे आ उस लैगिंग स्ट्रैंड की 5 डैश एंडिंग इत्थे है। जिमें जिमें स्ट्रैंड खुलना तो हर बारी 3 डैश एंड ही होना उहदा, ठीक है, 3 डैश एंड होना। तो हर बारी नवा प्राइमर लगूगा, ठीक है, नवे प्राइमर तो स्ट्रैंड की फॉर्मेशन होगी। इट मीनस इस लैगिंग स्ट्रैंड ते जो फॉर्मेशन आ फ्रैगमेंट्स दे विच होगी नवे डीएनए की, ठीक है, जिन्हों के नाम दिता जाता ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ये टर्म है तुहाडी बुक च, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। दे आर फॉर्मड ऑन लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। हुण समझ आ गया। पेरेंटल स्ट्रैंड का जिथे 3 डैश एंड आ उत्थों तां कॉन्टीन्यूअस फॉर्मेशन हो जाऊगी, ठीक है, कॉन्टीन्यूअस फॉर्मेशन होगी चेन की। बट जिथे पेरेंटल स्ट्रैंड का 5 डैश एंड आ, ठीक है, तो फोक ते जिथे रेप्लीकेशन फोक स्टार्ट होंदा उत्थे उस पेरेंटल स्ट्रैंड का 3 डैश एंड ही आउंदा हमेशा। तो उत्थे नवे स्ट्रैंड स्ट्रैचिज की फॉर्म च बनणगे, ठीक है, फ्रैगमेंट्स की फॉर्म च बनणगे, जिन्होंने बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। तो जदों डीएनए ये रेप्लीकेशन फोक दे विच पूरे तरह पूरा डीएनए की जो फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, स्ट्रैंड्स ब्रेकअप होए नवे 2 स्ट्रैंड्स बन गए एक डीएनए तो इधर फ्रैगमेंट्स नूं जॉइन करन लई इंजाइम है डीएनए लाइगेज, ठीक है। तो डीएनए लाइगेज ने इस फ्रैगमेंट्स नूं जॉइन करके कॉन्टीन्यूएशन च स्ट्रैंड बना देना। तो अपने कोले सिंगल डीएनए तो, ठीक है, 2 डीएनए की फॉर्मेशन होगी। वो 2 नवे डीएनए दे विच एक पेरेंटल डीएनए आ, एक न्यू डीएनए आ, ठीक है, जिहदे तो प्रूव जो आप पहला प्रूव किया कि सैमी कंजरवेटिव रेप्लीकेशन हुंदी है हमेशा, ठीक है, 1 पेरेंटल स्ट्रैंड एंड अदर न्यू स्ट्रैंड। सो सैमी कंजरवेटिव नेचर ऑफ रेप्लीकेशन इज ऑल्सो, ठीक है। हेयर तो क्लीयर हो गया होना हुण रेप्लीकेशन तुहाडे सिलेबस च जनरल आइडिया ही है, पर तुहानूं टर्म्स क्लीयर होने चाहिए। वट इज़ लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, ठीक है। वट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स वर्किंग, स्पैशली डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए प्राइमर की हुंदा, आरएनए प्राइमेज की हुंदा, ठीक है। फ्रैगमेंट्स च क्यों बनते हैं लैगिंग स्ट्रैंड के उत्ते न्यू डीएनए। तो सारे क्वेश्चनस तुहाडे क्लीयर ने, ठीक है जी। अज का आपां बेटा इन्ना ही टॉपिक करना सी, ठीक है। थैंक यू जी, हैव अ नाइस डे।